Bismillahirrahmanirrahim. This is Dr. Akir Raza. This is our first class regarding technique of educational assessment in first semester of MPhil education. I welcome you all. I hope you are enjoying good health at homes. Please remain at homes and follow the instruction given by government and health authorities. Allah bless you all. I have told that the subject name is Teaching of Educational Assessment. It is very important and technical subject. Evaluation plays a pivotal role in deciding what the learner learn and what the teacher teach in school. The course deal with concept important to measurement, evaluation and assessment in education, as well as discussion of the types of informal and formal assessment, the purpose of assessment, the development and use of valid and reliable objective assessment instrument, including paper and pencil test, performance test, as well as the selection of test, administration, scoring, grading, and interpretation of test score, and the use of successful classroom evaluation. Learning objective of the course are to understand the importance of educational assessment in teaching learning process, to define and describe various concepts related to educational measurement and assessment, to develop and use various types of classroom tests in accordance with the course objective and nature of content, to apply the techniques of scoring and grading the test, to evaluate student performance effectively, and to develop a systematic record of student assessment, report meaningfully to parents, administration, and students. I'll fully try to present a literature that will clear your concepts. I'll deliver lecture in both Urdu and English language. The today topic that will discuss, that is the concept of measurement, evaluation and assessment and relationship between them, as well as types of assessment. अगर आप कंप्यूटर या लैपटॉप की स्क्रीन पर देखें तो आपको कुछ डेफिनेशन नजर आएगी. सबसे पहले इन कंसेप्ट का फर्क करने से पहले हम इनको डिफाइन करेंगे, और मेजरमेंट को अगर हम डिफाइन करें तो उससे पहले टेस्ट की डेफिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर आपसे कहा जाए कि टेस्ट को डिफाइन करें, सिंपली आपने कोई बुक से डेफिनेशन याद नहीं की हुई, तो यू कैन से अ टेस्ट इज अ सेट ऑफ क्वेश्चन, अ क्वेश्चन आर सेट ऑफ क्वेश्चन, जिसमें कुछ पूछा गया है, कुछ आपसे सवालात किए गए हैं और आपने उन सवालात का जवाब देना है. आपको बुक्स में, इंटरनेट पे बहुत सारी डेफिनेशन मिल जाएंगी और बहुत सारी टेस्ट की टाइप्स हैं. इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे. अभी ये जो आप स्क्रीन पे डेफिनेशन देख रहे हैं, ज़रा अगर हम इसको डिस्कस करें तो हमें टेस्ट की डेफिनेशन बहुत हद तक क्लियर हो जाएगी. क्या है? अ मेथड टू डिटरमाइन द स्टूडेंट्स एबिलिटी टू कंप्लीट सर्टेन टास्क और डेमोन्स्ट्रेट मास्टरी ऑफ a skill or knowledge of content. Some types would be multiple choice test or a weekly spelling test. While it is commonly used in assessment or even evaluation, it can be distinguished by a fact that a test is one form of assessment. ये definition क्या जाहिर कर रही है? मेन मकसद ये होता है, क्योंकि हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को ज़हन में रखते हुए ये ज़हन में रखिएगा कि ये किसी स्टूडेंट की एबिलिटी को मेजर करने का एक टूल है. किसी सर्टेन टास्क को देखने के लिए कि क्या वो अचीव हुआ है या अचीव नहीं हुआ, किस हद तक नॉलेज में मास्टरी लर्निंग हुई है या नहीं. और फिर इस डेफिनेशन में इसके साथ साथ इसकी कुछ टाइप्स भी
डिस्कस की गई हैं, जो मैं इस मौके पर नहीं डिस्कस करूंगा, बिकॉज देयर आर नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ द टेस्ट, रिटन टेस्ट, प्रैक्टिकल टेस्ट, oral test, then objective type, subjective type of test with respect to purpose, with construction, there is a detail. Just यहाँ आपको सिर्फ टेस्ट का कंसेप्ट पेश करना मकसद था। टेस्ट का कंसेप्ट इसलिए पेश किया गया क्योंकि हम डिस्कस तो मेजरमेंट, एवेल्युएशन और असेसमेंट के कंसेप्ट कर रहे हैं, और इन्हीं को ही हमने जो है ना डिफरेंशिएट करना है। लेकिन टेस्ट इज वन ऑफ द मेजरमेंट टूल। मेजरमेंट के लिए जो मुख्तलिफ टूल इस्तेमाल होते हैं उनमें से एक टेस्ट है जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज होता है, बहुत ज्यादा इस्तेमाल है। बहरहाल अब मैं आप मेजरमेंट की तरफ आऊंगा। मेजरमेंट आप कह सकते हैं द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द डिग्री टू विच एन इंडिविजुअल possesses a particular character। वेरी सिंपल, न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स किसी इंडिविजुअल की जिसे उसने क्वांटिटेटिव फॉर्म में हासिल किया है। क्वांटिटेटिवली एक्चुअली मेजरमेंट आंसर द क्वेश्चन हाउ मच। मैं मिसाल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। द मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट इन अ टेस्ट इज measurement. For example, a students in a test of math, physics or chemistry or science got 70 marks out of 100, or total may be different. This is measurement. इसे हम measurement कहते हैं, quantitative form. अब जरा इस डेफिनेशन को देखिएगा, आपको वाज़ेह और क्लियर हो जाएगा। measurement beyond its general definition refer to the set of procedures and principle for how to use the procedure in educational test and assessment. Refer to the set of procedure and principle. Keep in mind some of the basic principle of measurement in educational evaluation would be raw score, that number 70 marks, 60 marks, percentile ranks, and derived score and studied score. All these are the measurements. Keep in your mind, measurement answer the question how much. No. Then what is evaluation? Evaluation is the systematic process of collecting, analyzing, and interpreting information to determine the extent to which pupils are achieving instructional objective. Actually, measurement, that is a raw score. If you got 70 marks, you require some standard score, that is percentage or percentile. So raw score never clear the picture को clear नहीं करते। आप नहीं बता सकते कि ये अच्छा रिजल्ट है या बुरा जब तक आपको पता ना हो कि 70 आउट ऑफ 200, 300, 100, अगर 100 में से है तो अच्छा रिजल्ट है, 300 में से है तो दैट इज बिलो एवरेज। सो एवेल्युएशन उससे अगला स्टेप है ऑन द बेस ऑफ मेजरमेंट्स एंड नॉन मेजरमेंट्स। अभी हम ये भी डिस्कस करेंगे कि नॉन मेजरमेंट्स क्या होते हैं। सो एवेल्युएशन सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसमें हम ये डाटा कलेक्ट करते हैं, हमने मेजर किया, उसको एनालाइज करते हैं, रॉ स्कोर को ड्राइव स्कोर में या स्टैंडर्ड स्कोर में कन्वर्ट करते हैं, एंड इंटरप्रेट इंफॉर्मेशन, उन इंफॉर्मेशन का मतलब बताते हैं कि इसका मतलब क्या है और कितने टारगेट से चाहिए, और फिर उसकी बुनियाद पर हम क्या करते हैं, हम डिसीजन मेकिंग करते हैं, फ्यूचर के बारे में डिसाइड करते हैं। दैट इज एवेल्युएशन। जैसे मैंने बताया था कि मेजरमेंट आंसर हाउ मच, सिमिलरली एवेल्युएशन आंसर द क्वेश्चन हाउ गुड, कि कितनी बेहतर अचीवमेंट हो चुकी है, किस लेवल तक हम पहुंच चुके। अब जरा आप इस डेफिनेशन को जो आपकी स्क्रीन पर नजर आ रही है एवेल्युएशन की, जरा इसको देखें और फिर हम देखेंगे कि हमारे कंसेप्ट कितने बेहतर तरीके से क्लियर हो गए। जी, प्रोसीजर यूज्ड टू डिटरमाइन वेदर द सब्जेक्ट मीन स्टूडेंट मीट्स अ प्रेजेंट क्राइटेरिया, सॉरी
set criteria such as qualifying for special educational services. This uses assessment to make a determination of qualification in accordance with the predetermined criteria. इसमें evaluation हमें assessment के लिए helpful होता है और ये हमें बताता है कि हमने जो हमारा क्राइटेरिया था, प्रीसेट क्राइटेरिया था, जो हमारे ऑब्जेक्टिव थे, जो हमारा गोल था, वो कितने अचीव हुए, क्या वो प्रोसेस, एजुकेशनल प्रोसेस उसको पूरा कर भी रहा है। जाहिर बात है आगे क्राइटेरिया बना होता है कि पहले 33% था, किसी जगह पे 50% है कि इतने आप क्वालिफाई करेंगे तो आप पासिंग ग्रेड में है, यहाँ पे आपका ए प्लस ग्रेड है, यहाँ पे ए ग्रेड। All this is on the base of the evaluation. मेरे ख्याल में बहुत हद तक फर्क वाज़ेह हो गया होगा कि मेजरमेंट न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन, नंबर फॉर्म, रॉ डाटा, उसकी बुनियाद पर आप जो डिसीजन करते हैं, डाटा को एनालिसिस करने के बाद जो आपने प्रीडिटरमाइंड क्राइटेरिया बना रखा होता है, उसकी बुनियाद पर जो कुछ आप डिसीजन करते हैं, दैट इज एवेल्युएशन। और फिर एवेल्युएशन, अभी हम इसका फर्क भी देखेंगे, आगे एक फिगर आएगी और उसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि असेसमेंट और एवेल्युएशन, और इनमें मेजरमेंट और एवेल्युएशन और असेसमेंट में तो वाज़ेह फर्क है कि मेजरमेंट न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन है, रॉ स्कोर है, हम मेजरमेंट की बुनियाद पर एवेल्युएशन कर भी सकते हैं, हम मेजरमेंट की बुनियाद पर असेसमेंट कर भी सकते हैं। और मेजरमेंट के लिए बहुत सारे टूल्स है, मेजरिंग टूल्स, ऑब्जर्वेशन है, इंटरव्यू है, रेटिंग स्केल है, टेस्ट भी एक मेजरमेंट स्केल है जो मैंने पहले इसलिए डिस्कस किया और जो कि बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होता है हमारे स्कूल्स में। दुनिया में जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली मेजरमेंट टूल यूज हो रहा है, दैट इज अ टेस्ट। अब स्क्रीन पर आपके सामने एक फिगर दी हुई है, सर्कल्स दिए हुए हैं, जिससे हम इन तीनों टर्म्स के दरमियान फर्क महसूस कर सकते हैं या फर्क मालूम करेंगे, विल डिफरेंशिएट। एक्चुअली असेसमेंट यहाँ पे यूज नहीं हो रहा, उसको हम बाद में देखेंगे। वेरी सिंपल, टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट है, उसकी बुनियाद पर मेजरमेंट हो रही है और मेजरमेंट की बुनियाद पर एवेल्युएशन हो रही है। ठीक हो गया। इसका मतलब है कि मेजरमेंट स्पेसिफिक है और एवेल्युएशन उससे वास्ट है। अब यू कैन से इसको मजीद आप इसको इस तरह कह सकते हैं कि मेजरमेंट असाइनिंग नंबर्स हैं और एवेल्युएशन वैल्यू जजमेंट है, डिसीजन मेकिंग है। ठीक हो गया। अब थोड़ी सी जो चीज़ कंफ्यूज करती है, अभी हम इसको थोड़ा सा रीड करेंगे जो हमें क्लियर करेगी बहुत सारी बातें। अब बल्कि इसको रीड करेंगे और जो चीज़ क्लियर नहीं होगी वो मेरे साथ आप डिस्कस कर सकते हैं, क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। अब बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि एवेल्युएशन और असेसमेंट का जो डिफरेंस है वो कंफ्यूज करता है, वो स्टूडेंट्स को क्लियर नहीं होता। ध्यान में रखिएगा, एवेल्युएशन ऑन द बेस ऑफ मेजरमेंट, जबकि असेसमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। टीचर क्लासरूम में जा रहा है, मे बी वो कोई टूल यूज नहीं कर रहा लाइक टेस्ट या कोई प्रॉपरली जो है ना प्लान टेस्ट या प्लान टूल यूज नहीं कर रहा, लेकिन वो असेस कर रहा है। कैसे असेस कर रहा है? क्लास में आपका बिहेवियर, आपके बैठने का स्टाइल, आपकी क्वेश्चन करने की सलाहियत, आपकी पार्टिसिपेशन इन क्लास, आपकी दिलचस्पी इन क्लास। तो जाहिर बात है असेसमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। सो यू कैन से असेसमेंट एनी ऑफ अ वैरायटी ऑफ प्रोसीजर यूज्ड टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस के बारे में कोई इंफॉर्मेशन दैट based on measurements or non-measurement. Similarly, the assessment answer how well does the individual perform. क्वालिटी आ जाती है, असेस कर रहे हैं कि किसकी परफॉर्मेंस कितनी अच्छी है। अगर आप हम इसको जरा रीड करें तो वही बातें
जो मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं, आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। द पर्पज ऑफ दिस रिप्रेजेंटेशन, जो ऊपर सर्कल में दी हुई है, इज टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन सुपरऑर्डिनेट्स एंड सबऑर्डिनेट कंसेप्ट एंड एरिया ऑफ ओवरलैप बिटवीन देम। Thus, evaluation includes measurement when decisions are made on the basis of information from quantitative methods. So, through measurement, we got quantitative information. On the basis of these information, we make decision. And measurement includes testing when decision making is done through the use of a specific sample of behavior. However, the process of decision making is by no means restricted to the use of quantitative method, as the area not covered by measurement circle, as tests are not the only means to measurement circle. बहुत वाज़ेह कर रहा है कि हम मेजरमेंट की बुनियाद पर वैल्यूएशन करते हैं, लेकिन सिर्फ मेजरमेंट की बुनियाद पर नहीं, सिर्फ टेस्टिंग की बुनियाद पर नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अब जारी बात है, ये जो वैल्यूएशन है वो मेजरमेंट सर्कल को तो कवर कर रहा है, लेकिन इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, वो ऑब्जर्वेशन है, वो और दूसरे टूल्स हैं जिसके ज़रिए वो ज़रूरी नहीं सारे क्वांटिटेटिव टूल्स हों, क्वालिटेटिव टूल्स भी हो सकते हैं, टीचर्स की जजमेंट भी हो सकती है। सो दिस इज कॉल्ड एवेल्युएशन। आई होप आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मेजरमेंट एंड एवेल्युएशन। अभी मैं एवेल्युएशन और असेसमेंट को वाज़ेह तौर पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा ताकि आपकी ये कंसेप्ट हमेशा के लिए क्लियर हो जाए, लेकिन थोड़ा सा हम इसको रीड करेंगे ताकि ये आगे भी इस फिक्र को थोड़ा सा उन्होंने थोड़ी सी इसमें तब्दीली करके आप पेश किया गया है और कंसेप्ट को मजीद क्लियर करने की कोशिश की है। जरा इसको हम देखेंगे जी। द रिलेशनशिप इन समवट different ways given. The goal has been to extend the model to include not only language testing but also language teaching, language learning and language research domains, बाकी चीज़ें। और अभी फिगर 2 इसको मज़ीद एक्सप्लेन करेगी और फिर 5 एरियाज दिए हुए हैं जो इसको मज़ीद वाज़ेह कर देंगे। अगर इस फिगर को देखें तो कहता है एवेल्युएशन कुछ मेजरमेंट्स और टेस्ट की बुनियाद पर होती है, बाकी एवेल्युएशन नॉन मेजरमेंट्स पर भी हो सकती है। और ये कुछ एरियाज उसने डिस्कस किए हैं, इससे इंशाल्लाह बहुत सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। एवेल्युएशन नॉट इन्वॉल्विंग आइदर टेस्ट और मेजर्स, फॉर एग्जांपल द यूज ऑफ क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस फॉर डायग्नोस्टिक लर्निंग प्रॉब्लम। ये मैंने आपसे कहा नॉन मेजरमेंट्स, क्वालिटेटिव। कोई लर्निंग इशू आ रहा है, उसको जरूरी नहीं कि हम टेस्ट की बुनियाद पर, उसके लिए कुछ क्वालिटेटिव टेक्निक्स हम यूज करते हैं, दैट इज आल्सो एवेल्युएशन। अ नॉन टेस्ट मेजर फॉर एवेल्युएशन, फॉर एग्जांपल टीचर रैंकिंग यूज्ड फॉर असाइनिंग ग्रेड्स। A test used for the purpose of evaluation, for example, the use of an achievement test to determine student passes, that is measurement. So evaluation is based on measurements and non-measurements. Once number 4, area number 4, non-evaluative use of test and measures for research purpose. जरूरी नहीं कि हम measurements evaluation process के लिए करें और purpose के लिए भी यूज कर सकते हैं। For example, the use of proficiency test as a criteria in second language acquisition research, that is assessment. Non-evaluative, non-test, another area. ना हम टेस्ट ले रहे हैं ना उसको evaluate. For example, assigning code number to the subject in second language research according to the native language. तो ये सारे कुछ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो कि मेजरमेंट और एवेल्युएशन का क्या रिलेशन है, कहाँ पे ये एक दूसरे के लिए यूज नहीं भी हो रहे होते। आई होप बहुत सारा आपका जो कंसेप्ट है इस हवाले से क्लियर हुआ होगा। फिर भी कहीं पे अगर इनकी डिफरेंशिएशन में कोई इशू है तो हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि असेसमेंट और एवेल्युएशन में क्या फ़र्क है। मैंने एक फ़र्क तो वाज़ेह बताया, एवेल्युएशन एट द एंड ऑफ द प्रोसेस, दैट इज एवेल्युएशन। असेसमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है।
अगर ये कंसेप्ट ले भी लिया जाए तो अगला क्वेश्चन ये है, व्हाट इज सम्मेटिव एंड फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन एंड व्हाट इज सम्मेटिव एंड फॉर्मेटिव असेसमेंट। ये तो कंफ्यूज करता है, लेकिन ज़हन में रखिएगा कि एवैल्यूएशन फैक्ट्स एंड फिगर्स की बुनियाद पे एक प्रॉपर डिटरमाइंड क्राइटेरिया के तहत की जाती है। फॉर्मेटिव एवैल्यूएशन ड्यूरिंग द प्रोसेस भी होती है, लेकिन वो एक कंप्लीट यूनिट को एवैल्यूएट किया जाता है। फॉर एग्जांपल, इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस यू कैन एवैल्यूएट टीचिंग मेथड्स, you can evaluate behavior of the students. This is formative evaluation, and at the end evaluation of the whole process is called summative evaluation. But assessment during the process, that is a continuous process. You are doing assessment, that is formative assessment, and at the end of the program or process, that is summative assessment. Here another figure given that will clear more your concepts. और ये जो फिगर दिया, नीचे जो मटेरियल दिया हुआ है, ये इन्हीं चीज़ों को मज़ीद बेहतर करेगा कि क्वालिटेटिव क्या मेजरमेंट्स क्या है, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट्स क्या है, डिसीजन मेकिंग में क्या काम, इनका क्या रोल है। तो मेरे ख्याल में बहुत हद तक आपको इनका फ़र्क वाज़ेह हो चुका है। अभी हम अगले स्टेप में असेसमेंट को जब हम डिफ़ाइन करेंगे तो मज़ीद क्लियर हो जाएगा, उसको डिस्कस करेंगे तो मज़ीद क्लियर हो जाएगा, और उसके बाद हम टाइप्स ऑफ असेसमेंट भी देखेंगे। Thank you students for your patience. In next step, in second part of the lecture, we'll discuss the educational assessment and its different types. Thank you very much.